Now, up till now, what we have studied, the different costing methods, maybe modern management accounting techniques, life cycle, target costing, or traditional methods, absorption costing, marginal costing, types of cost. That means in any organization, if we understand that this is the method, this is the product they are producing, these are the services they are offering, this is the nature of the cost, this way they should be estimating their cost and all that. But the estimation or the projection don't have any meaning unless and until we don't compare our performance with the estimation. Similarly, suppose as per me we are standing at 50%. As far as ACCA syllabus is concerned, we are standing at 50% work done. तो अब ये इस समय this is essential that we need to analyze what we have done, what we have projected, and what is our actual outcome. So organizations maybe when they are preparing, when they are doing management accounting, because the name of the subject is what? Performance management. We need to manage the performance of an organization. So performance management deals with what? Whether a department, whether a division, whether a manager, whether the whole organization is performing properly. Are they doing well? तो अब वहां पहुंच गए. Actually, our in ACCA, when the professional level, when we will be doing advanced performance management, the subject is not management accounting, performance management, and then advanced performance management accounting. So the subject nature is how to evaluate the performance, whether for a department, whether for a division, whether for a particular manager, for a staff, for the whole organization. तो अब हम वहां जा रहे हैं, performance evaluation. वो performance related there are 3-4 topics. One is variance, the other is general performance measures, ratio analysis and all that. Then there is a performance of a not-for-profit oriented organization. Then performance evaluation. When a company is very big, many departments, many divisions, they are internally doing business with each other. Then the question of transfer price and all that, that also is there. This will take around 6 classes, 6 to 7 classes will take. So the target is that in this month, we will complete this. Maybe next month, first week. Maybe next month, first week, maybe 5th of February भी हो सकता है. Because मेरे को इतना, I am not in a very hurry. कि by next week, next month, by 5th of February, we need to finish. And then in ACCA, as I said, one decision making area, relevant cost, or learning linear programming, those areas are there. They are there in CMA US part 1. A student can attend those classes, I don't have an issue. But वो CMA US में part 1 में नहीं है, part 2 में है, sorry. And for CMA US part 1, there are some areas, part E, or maybe some here and there, whatever I left, that we will finish by around 10th or 15th of February. और फिर सभी के लिए अपने उनका पेपर, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स ये सब करेंगे. अभी ये जो टॉपिक है, दिस इज वन एरिया इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, विच इज वेरिएंस एनालिसिस. Variance analysis is not like if somebody has studied variance in graduation, या मान लीजिए हम लोग अगर ACCA शुरू से कर रहे हैं, we have done the variance analysis at knowledge level, ये वैसा नहीं है. It is high level variance analysis. High level variance analysis means not that difficult. Organization ने 2020-22 के लिए बजट बनाया था. Based on costing methods, based on different budgeting principles, based on alternative costing techniques, based on what do you say modern management, हमने अपना टारगेट सेट किया, बजट बनाया. 2022 का बजट we made at 2022 beginning, and now 2022 is over. So when there was a target, when there was a budget,
We need to compare with the actual outcome. We need to analyze where we are lagging. We need to see where we are performing well. तो जहां हम अच्छा कर रहे हैं वहां उसको रिपीट करना है, और जहां हम खराब कर रहे हैं उसको सुधारना है, ठीक करना है. ऐसा नहीं है कि दिस विल बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली. Normally, if the organization is structured, then in that case, this will be done at regular intervals. Maybe monthly basis, maybe quarterly basis. लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं कि साल बीत गया, साल के लिए हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना चाह रहे. तो हमने पूरे साल के लिए 2022 के लिए क्या सेल फोरकास्ट किया था. सेल कैलकुलेट करने के लिए हमने टाइम सीरीज, रिग्रेशन, इंडेक्स जो भी लगाया होगा, हमने सेल फोरकास्ट किया. कौन कौन से प्रोडक्ट बेचेंगे, व्हाट विल बी द सेल प्राइस, व्हाट विल बी द कॉस्ट, ईच कॉस्ट, वेदर इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, वेदर इट्स अ फिक्स कॉस्ट, वेदर इट्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वेदर बेस्ड ऑन एक्टिविटी, वेदर बेस्ड ऑन एब्सॉर्ब्स, जो भी हम पूरा का पूरा बजट बनाए थे कि दिस इज गोइंग टू बी आवर आउटकम, द सेल्स रेवेन्यू, this is going to be our cost, material, labor, overhead, and this is going to be our income. मान लीजिए कोई गूगल है, उसका 50 डिपार्टमेंट है, डिवीजन है. सराफ एकेडमी है, एक डिपार्टमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, एनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट बिग और स्मॉल. आपने एक बजट बनाया था, आपने एक टारगेट सेट किया था, एंड 2022 इज नाउ ओवर. तो आपके पास एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सारे कॉस्ट डिटेल्स आपके पास है. अब आप उनको कंपेयर करिए, एनालाइज करिए, देखिए कहां अच्छा हुआ है, कहां खराब हुआ है. वेदर वी आर इन द टेक्नोलॉजिकल एज वेयर वी कैन सी दैट बजट एंड स्टैंडर्ड्स आर ओल्ड टेक्निक्स, बट दिस बजट एंड स्टैंडर्ड्स विल नेवर गो ऑफ इन आवर होल लाइफ. चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन बजट और स्टैंडर्ड होते रहेगा. तो क्वेश्चन बोलने का मतलब यह है कि हमारे यहां, कोई के भी यहां सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, मटेरियल परचेज मैनेजर है, मटेरियल यूसेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, देन लेबर मैनेजर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, ओवरहेड कंट्रोलर है. सबका अपना अपना काम है, डिपार्टमेंट है, डिवीजन से, प्रोडक्ट्स है. तो अगर कुछ भी अच्छा हुआ है, सबके कारण हुआ है. एंड इफ देयर इज एनीथिंग बैड, वो भी सभी के कारण हुआ है. सभी मतलब मे बी बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सम पर्सन, सम मैनेजर, सम स्टाफ, द ऑर्गेनाइजेशन हैज परफॉर्म्ड वेल, एंड मे बी बिकॉज ऑफ सम मैनेजर, सम स्टाफ, सम डिपार्टमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट परफॉर्म्ड दैट वेल. अगर मान लीजिए टोटल में हमारा 2022 में इनकम होना था 2 करोड़, इनकम हमारी 2.5 करोड़ हुई है, खर्चे लेस करके एक्चुअल. इसका मतलब ग्रॉसली अच्छा है, लेकिन दैट डजंट मीन दैट हर डिपार्टमेंट में, हर मैनेजर, हर जगह अच्छा हुआ है. उसमें भी आपको दिखेगा देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम प्रॉब्लम्स जहां अच्छा नहीं हुआ है. और या अगर 2 करोड़ इनकम होनी थी एंड इनकम इज 1.8 करोड़ ओनली, इसका मतलब यह नहीं है कि सब जगह खराब हुआ है. उसमें भी आपको दिखेगा कि देयर आर सम एरियाज वेयर वी हैव परफॉर्म्ड बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. यानी कि कभी भी खराब और अच्छा इन टोटलिटी नहीं होता है, कहीं अच्छा होता है, कहीं खराब होता है. अगर आगे बढ़ना है, 2023 के लिए बजट टारगेट सही से बनाना है, तो यह करना जरूरी है. कहां पर प्रॉब्लम्स है उनको रेस्ट करना, उनको देखना, लोगों को ट्रेनिंग देना, समझाना, गलतियां क्यों ही उनको बताना, सो दैट in 2023 those areas where we have not performed well we can perform well. और अगर 2023 में वो एरियाज जहां पर अच्छा हुआ है वो वापस से और अच्छा हुए, रिपीट परफॉर्मेंस हुए. कि आज मान लीजिए केदार जी ने एसीसीए के अंदर 4 एग्जाम दिए, चौथा एग्जाम भी दिसंबर में दिए. तो अगर आपने 1 by 1 एग्जाम दिए, सभी में तो एक जैसा नहीं है ना, किसी में अच्छा नंबर आया, किसी में कम आया, किसी में बेसी आया. ऑल इन ऑल 2022 का परफॉर्मेंस क्या हुआ नेक्स्ट वीक पता चलेगा. लेकिन उसके बावजूद भी अगर अच्छा भी हुआ है, कहीं पर दिखेगा कुछ खराब है, कुछ गड़बड़ है. मैं ऐसे ही इलॉजिकल एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आप चैप्टर का फील में जाएं. केवल सम करने से कुछ नहीं होने वाला है. वी नीड टू गो इनटू द फील ऑफ द चैप्टर, बिकॉज आपका जो एग्जाम्स है सीएमए, एसीसीए, सीमा, ये सब ये कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम नहीं है. यू नीड टू गो
विथ अ 360 डिग्री नॉलेज, तभी आप न्यूमेरिकल्स, तभी आप थ्योरी सब कुछ मैनेज कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द फील ऑफ द चैप्टर. सो वी आर, यू कैन सी दैट गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इफ वी से क्वेश्चन वाइज, या तो हो सकता है आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे कि भाई हमारा सेल का टारगेट ये था, ये सब प्रोडक्ट बेचने वाले थे, ये मटेरियल खर्चा होना था, ये लेबर होना था, ये ओवरहेड होना था, ये एडमिन, ये सेलिंग वगैरह सब दिया हुआ है, और फिर आपको एक्चुअल भी दिया हुआ है, और आपको बोल रहा पता लगाइए कहां अच्छा हुआ, कहां खराब हुआ, वेयर वी परफॉर्म्ड वेल, वेयर वी हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल, ये सब आप पता लगाइए. मान लीजिए एग्जाम में इतना डिफिकल्ट, इतना लेंदी तो नहीं देगा, जिंदगी में तो देगा ना. अगर आप आईटीसी, हिंदुस्तान, यूनिलीवर कोई भी जगह काम करेंगे तो उनका तो इतना सारा ऑपरेशंस है, सबका मिलाकर देगा. ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा कि एवरी कैलकुलेशन वी नीड टू डू द वे वी विल बी डूइंग इन एग्जाम. सॉफ्टवेयर होगा, आईटी है, ईआरपी सिस्टम है, जिससे हम लोग उसको माने जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन फिर भी सॉल्व केवल कैलकुलेशन करने से तो होगा नहीं. वी नीड टू अंडरस्टैंड गड़बड़ी हुई क्यों. अगर आईटीसी, हिंदुस्तान, यूनिलीवर ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, गूगल है, एप्पल है, तो उनका तो अगर वो लोग डिफरेंसेस निकालेंगे, हो सकता है 5,000 डिफरेंसेस आए, ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, ये ऐसे हुआ. हर एक डिफरेंस के बारे में नहीं सोचा जाता है. वो जो डिफरेंस मेजर है, मेजर मतलब नॉट दैट खराब है, दोज डिफरेंसेस विच आर मेजर मे बी फेवरेबल, मे बी अच्छा हुआ है और मे बी खराब हुआ है. हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अगर आप कोई कंपनी में सीएफओ, सीईओ हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वेरिएंस निकाला जाएगा, डिफरेंस निकाले जाएंगे, लेकिन यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज डिफरेंसेस विच आर लार्जर. मे बी समटाइम्स इवन दो वो डिफरेंसेस जो कम है, लेकिन वो लगातार ऐसे ही है. देयर इज समथिंग विच इज गोइंग बैड कंटिन्यूअसली. जब हमने लास्ट ईयर भी बजट बनाया था, लास्ट ईयर भी सोचा, फिर अभी हम वहीं खड़े हैं. सो वी नीड टू अप्लाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. बट हम निकालेंगे पूरा, हम कैलकुलेशन एक बार पूरा डिफरेंसेस का निकालेंगे, जिससे कि एवरी डिपार्टमेंट, एवरी मैनेजर, एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन कॉन्सेंट्रेट. वो कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्लस माइनस इंटू फिंटू कुछ नहीं होने वाला है. उसके लिए सॉफ्टवेयर है. वेरिएंस आजकल कोई नहीं निकालता है. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सॉफ्टवेयर इज देयर, ईआरपी सिस्टम इज देयर, जिससे डिफरेंस वेरिएंस अपने आप निकलता है. लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनेगा तो मान लीजिए आप टीसीएस में काम कर रहे हैं, इंफोसिस में काम कर रहे हैं, विप्रो में वर्क कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाने में तो आपको हेल्प करना पड़ेगा. नॉट दैट वी आर द प्रोग्रामर, वी आर द एसीसीए, सीमा, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड, वी आर दैट. बट फिर भी हमें वो सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प तो करना पड़ेगा ना प्रोग्रामर का. यानी कि दैट वी कैन से दैट इट इज अ सिस्टम, इट इज अ मेथड विच वी नीड टू डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जूनियर्स, नॉर्मल पर्संस don't need to do the calculation so much, they can just put the data and the calculation can be done. इसीलिए एक स्टूडेंट को यू कैन से लोअर लेवल और मीडियम लेवल पे कैलकुलेशन सिखाया जाता है, विच आर प्रैक्टिकली नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस कुछ नहीं निकालना है. डेटा एक्सेल में रहता है, क्वांटिटी है, रेट है, एक्चुअल है, अपने आप वेरिएंस निकलता है. द एक्सेल फॉर्मूला सीट विल कैलकुलेट द वेरिएंस ऑटोमेटिकली. वो दुनिया गई जब कैलकुलेशन करना है, लेकिन हमें एग्जाम में करना है. देयर इज नो एक्सेल गिवन टू अस. वी कैन यूज एक्सेल, पुट द फिगर्स एंड देन कैलकुलेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, दैट वी नीड टू डू, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो आपका चैप्टर के अंदर एक काम है, जो भी डिटेल है, वेदर सेल्स डिटेल, वेदर मटेरियल डिटेल, वेदर लेबर डिटेल, ओवरहेड, ऑल द डिटेल्स, आपको सबका डिफरेंस निकालना है. क्या चीज का डिफरेंस? व्हाट वाज द टारगेट, व्हाट वाज द बजट, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस. डिफरेंस यू शुड नॉट बी सेइंग माइनस और प्लस. डिफरेंस यू नीड टू से एडवर्स और फेवरेबल. एडवर्स मींस जैसा आपने सोचा था, जो बजट बनाया था उससे खराब है. इफ इट इज रिलेटिंग टू कॉस्ट, आउटफ्लोज, कि मटेरियल कॉस्ट वाज बजटेड 1 लाख बट एक्चुअली इज 1,10,000,
Obviously, you, me, everybody will say 10,000 adverse. But if we are talking about sales, income, the sales would be 1 lakh, but it is 1,10,000. Nobody will say adverse. Everybody will say it is favorable. In case of inflows, income, sales, if the actual is more than the budget or standard, then it is favorable. In case of outflows, expenses and all that, if the actual is more than standard or budget, then in that case it is adverse. Adverse favorable को याद करने का चीज नहीं है. But when you calculate the difference, you cannot write minus or plus. You need to write adverse or favorable. In exam, the technical question may be like that, where the variance is given, the difference adverse favorable given, and they are asking you calculate missing data. कि भाई मटेरियल का बजट क्या था या मटेरियल का एक्चुअल मटेरियल क्या लगा, some missing data. Now when the variance are given and they are asking you to calculate missing data, तो आपको variance को minus plus लिख के solve करना होगा. Because when you normally calculate variance, it is not coming adverse, it is coming minus plus. You are giving minus plus as adverse or favorable. तो जब आपको adverse favorable दे देगा और आपको पूछेगा कि बैक कैलकुलेशन करिए, आपको माइनस प्लस पुट करना होगा. यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम एडवर्स या फेवरेबल फिगर लिखकर. अगर वो एडवर्स माइनस होने से आता है, प्लस होने से आता है, आपको फिगर पुट करके बैक कैलकुलेशन करना होगा. उसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, केवल प्रैक्टिकल होना है. बट बहुत सारे स्टूडेंट का वहां दिमाग उड़ जाता है. सर हम तो याद किए ना, एडवर्स मतलब माइनस. अरे भाई, दिस चैप्टर डोंट हैव एनी फॉर्मूला. कोई फॉर्मूला नहीं है. यानी कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूला नहीं देगा. बिकॉज आप बोलेंगे आपको मटेरियल $10 में खरीदना था, आपने मटेरियल $12 में खरीदा, तो उसका क्या फॉर्मूला लिखेगा क्या एग्जाम में कि द डिफरेंस ऑफ प्राइस इज स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस माइनस करके -2 इट इज एडवर्स. ऐसा थोड़ी ना लिखेगा. यू विल से 10 - 12, somebody will say 12 - 10. क्या फर्क पड़ता है? I am comparing 10 and 12. I am not saying 10 - 12 or 12 - 10. I am comparing 10 and 12. आप लिख रहे हैं, मान लीजिए केदार जी 10 - 12 और अथर्वा लिख रहे हैं 12 - 10. दोनों सही है. बात आगे क्या है? दोनों को यह समझना है कि भाई $10 के बदले द कॉस्ट इज $12. So it is adverse. Whether अथर्वा is calculating 12 - 10 $2 or whether Kedar is calculating 10 - 12 - $2, doesn't matter. माइनस प्लस की बात ही नहीं हो रही है. बात हो रही है खराब अच्छा जो हमें समझ में आता है, जिसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, उतना कॉमन सेंस सबके पास है. तो क्वेश्चंस करते वक्त थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, एकदम पागल नहीं हो जाएंगे फॉर्मूला वगैरह पे. देन इन दैट केस यू फेस प्रॉब्लम. यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ. थर्ड बात, हो सकता है कोई क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आपका ये बजट है और आपका ये एक्चुअल है, और आपको बोल रहे हैं कि आपका बजट और एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल इक्वल नहीं है, जो कि कभी नहीं होता. बिकॉज वी आर नॉट गॉड दैट वी कैन एस्टिमेट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन. वो कभी होने वाला नहीं है. देन इन दैट केस व्हाट वी आर सेइंग, दे विल बी आस्किंग कि ऑल द रीजंस फॉर द डिफरेंस, कि योर बजट और स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल. All the differences, which is called variances, you calculate. And then you show a reconciliation statement. Reconciliation statement means, जैसे बचपन में BRS बनाते थे, we start with the cash book balance and we bring the passbook balance, or the passbook balance, we bring the cash book balance. Similarly, we will start with the budgeted or standard income. We will do all the plus minus of the variances which we have calculated, and it will automatically give you the actual income. Or you can start with the actual income. You will do all the plus minus of the variances, differences, and you will get the budgeted or standard income. ऐसा question normally will come in the essay type, in part C. There is no guarantee that in part C variance का question आएगा. Frequency अच्छी है, आता है बहुत. इन CMA US ऐसे टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में वेरिएंस आता है. कोई गारंटी नहीं है किसी में भी. देयर यू नीड टू शो द कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट, बिकॉज इट्स बिगर, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है. तो उसका मार्क्स भी वैसे ही रहता है
कि इन सीएम में यूएस 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन इज 62.5 मार्क्स, इन ACCA 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन इज 20 मार्क्स, then it will take around 20-30 minutes to solve it and all that. I mean to say that वैसा भी क्वेश्चन है जहां आपको बहुत सारे वेरिएंस निकालने हैं और रिकंसिलिएशन करना है. चौथा टाइप का क्वेश्चंस, द फोर्थ कैटेगरी, थ्योरी. अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चंस आता है मे बी 20 मार्क्स, 10 मार्क्स उसमें थ्योरी जरूर होगा. द कैलकुलेशंस आर ओनली 10 मार्क्स. अगर आपका पार्ट ए और बी में ACCA में क्वेश्चंस आता है, आएगा. कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन 40-50% से ज्यादा नहीं होगा. थ्योरी मतलब आप सोचेंगे याद करना है. तो मान लीजिए कोई लोग बाद में ज्वाइन किए, अथर्वा ज्वाइंड लेट, देन और कोई केसव बाद में ज्वाइन किया, उनको मन में लगेगा बाद में. प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हेन आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, आप अगर एक सेकंड में कैसे समझेंगे? यू नीड टू गेट द फील आने में थोड़ा टाइम लगता है ना. यानी कि रिकॉर्डिंग फिर भी करना है, अगर पहले से थे तो भी, कि भाई हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्यों, परफॉर्मेंस से इसका क्या ताल्लुक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं. दैट नॉलेज यू शुड बी देयर. तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मे बी अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यू आर गोइंग बियॉन्ड द क्वेश्चंस. कोई डेटा मान लीजिए येस्टरडे शी वाज आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ये करना है, तो मैंने जबरदस्ती डिस्कस किया कि टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या पढ़े थे, ऐसा क्यों है. व्हेन यू आर डूइंग अ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो, योर माइंड शुड बी वेरी ओपन. अदरवाइज यू विल नॉट बी गिविंग रिजल्ट्स, यू विल नॉट बी गिविंग आउटकम टू दैट. उसको आप कर नहीं पाएंगे. थ्योरी वाला आपको लगेगा अरे यार समझ में नहीं आता है, कैसे होता है, अब जो तो करेंगे. थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग नहीं होता है, चीज समझने की बात है. सो दोनों को अगर साथ में रखेंगे, वेदर इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थिंक ब्रॉडली, वेदर इट्स अ थ्योरी, थिंक ब्रॉडली, कि भाई ये वेरिएंस क्यों बढ़ा, क्यों खराब हुआ, क्यों फेवरेबल हुआ. एकदम प्रैक्टिकल सोचना है. मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में सेल, जितना वो लोग बजट किए थे उतना नहीं, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उन्होंने सेल प्राइसेस ज्यादा रखा है, हो सकता है मार्केट में कॉम्पिटिटर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह बेटर दे रहे हैं, हो सकता है कॉम्पिटिटर ने क्वालिटी बेटर किया है आपसे, हो सकता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कॉम्पिटिटर के साथ बेटर है, आपसे खराब है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हुआ है, कुछ तो हुआ होगा ना. दीज आर ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. नाउ अब कौन सी पॉसिबिलिटी को आपको सेलेक्ट करना है, वो मैं ऐसे कैसे बोलूं? दैट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन सिनेरियो. और अगर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहां थ्योरी में लिखना है पार्ट सी जैसे ऐसे टाइप, सीमा में केस स्टडी में, कि भाई हमारा ऐसा हुआ, आपको हर पॉसिबिलिटी को लिखना होगा. इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, देयर इज नो टीचिंग फॉर दैट, जस्ट नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ. आप अगर प्रैक्टिकल होंगे तो लिख पाएंगे. इफ यू आर रेफरिंग मॉडल आंसर, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनका आंसर लिखने का तरीका अलग है. वो लोग आंसर आपके जैसे 10-20 मिनट में नहीं लिखे हैं, 5-10 लोग मिलकर 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा लगाए हैं लिखने में. आप उनसे मैच नहीं कर सकते. बट अगर आप उनसे मैच करेंगे तो फिर सारे लोग फेल होने चाहिए. अभी सीमा का रिजल्ट आया, कोई फेल ही नहीं है. मैनेजमेंट लेवल में देयर आर 2 स्टूडेंट फेल्ड, स्ट्रैटेजिक लेवल 1 स्टूडेंट फेल. यानी कि क्वेश्चन ये है कि कोई भी स्टूडेंट ने वो नहीं लिखा है जो मॉडल आंसर में लिखा हुआ है, पास है सब. कोई स्टूडेंट रैंक भी ला सकता है, 110 स्कोर. लेट्स सी व्हेन द इंस्टीट्यूट विल रिलीज रैंक, चांसेस आर स्लाइटली लेस, 115 करीब चाहिए, 5 नंबर कम है. बट आई मीन टू से दैट कि जो रैंक ला रहा है वो क्या मॉडल आंसर लिखा है क्या? मॉडल आंसर वी विल रेफर, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट वी कांट कॉपी द मॉडल आंसर व्हाट इज रिटन बाय द इंस्टीट्यूट, because that is not written, not that they are very knowledgeable than you, that is not written by one person, that is not written in 20-30 minutes the way you are getting in the exam. क्वेश्चंस को करते वक्त प्रैक्टिकल रहिए, आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, वेरी डायरेक्ट टॉपिक. लेकिन इफ यू जस्ट कैलकुलेटिंग वेरिएंस बचपन में कभी किए होंगे, फॉर्मूला याद कर लिए, सर मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि आई डोंट, कोई फॉर्मूला नहीं है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. बिकॉज इन वन क्लास समबडी सेड दैट सर एग्जाम में कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है. रेशियो और वेरिएंस इज नॉट फॉर्मूला, दे आर नेवर गिवन इन एनी एग्जाम एज अ फॉर्मूला. यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड देम.
और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस, ये आपके ऊपर है। आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा M1 M2 लिखा हुआ है, किसी में कोई टेबल बनाना हुआ है, किसी में कुछ किया हुआ है, अपना अपना तरीका है। देयर आर सो मेनी प्रेजेंटेशंस पॉसिबल। प्रेजेंटेशन के लिए झगड़ा दिमाग में भी मत करिए और क्लास में भी मत करिए। आपका प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन जो फटाफट हो, जल्दी से आप आंसर कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जो कॉलम रो बनाया आपको भी वही बनाना है। हम लोग एक प्रेजेंटेशन करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपरली। ये नहीं कि हम एक चैप्टर के ऊपर 5000 सम करेंगे, हम कुछ सम्स लिख के करेंगे, तो इन दैट केस प्रैक्टिस बेहतर होगी, हम अपने आप परफॉर्म कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। In many courses, like I have taught CA final so many times, CA inter, year after year, I have seen that there are in this chapter 70 to 80% student, उनके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं। जब उनसे कुछ पूछो तो जैसे सर फॉर्मूला नहीं याद है, ये बात बोला मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब वेरिएंस एनालिसिस उनसे नहीं हो सकता। नो फॉर्मूला, बी ओपन एंडेड, बी प्रैक्टिकल, देन यू विल बी एबल टू मैनेज। तो 3-4 तरह का क्वेश्चन है। ब्रॉडली न्यूमेरिकल थ्योरी, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है तो कोई पर्टिकुलर एरिया का वेरिएंसेस निकालना, टोटल वेरिएंसेस निकालना, रिकंसिलिएशन करना, वेरिएंस दिया हुआ है बैक कैलकुलेशन करना, और कोई वेरिएंस एडवर्स या फेवरेबल क्यों है उसके बारे में लॉजिक देना। दैट इज द चैप्टर। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज हम अगर कुछ टारगेट सेट किए हैं, कुछ बजट बनाए हैं, तो एक्चुअल से कंपेयर वी नीड टू डू, वी हैव टू एनालाइज हमारी गड़बड़ी कहां हो रही है, कहां इंप्रूव करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन में साल के एंड में या क्वार्टरली मंथली होता जरूर है, जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट, ऑफ अ डिवीजन, ऑफ अ मैनेजर, ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर वे यू वांट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। हम वो पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर 3-4 टॉपिक है। अभी हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं और आगे टॉपिक बाद में हम करेंगे। अब है, हम लोग जो बचपन में पढ़ के आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आपको याद है कि नहीं, पहले उसको रिवाइज कर रहे हैं। सिंपली सेल्स वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस सिंपली कैसे निकालेंगे। इवन दो चैप्टर का नाम ही है एडवांस वेरिएंस, बट चाहे सीएमए हो चाहे एसीसी हो, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस भी आता है। और वो माना जाता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो नॉलेज लेवल पढ़ के आया है, उसने जो पीएम में माने एमए में पढ़ा वो यहां पर रेलेवेंट है। सीएमए यूएस में तो पुराना कुछ है ही नहीं, सब बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, हायर लेवल सब एक ही साथ है। तो मैं शुरू से रिवाइज करा रहा हूं, शुरू से बोल रहा हूं। एज्यूमिंग यू हैव नेवर स्टडीड वेरिएंस, डोंट टेक टेंशन कि सर मेरा तो कभी पढ़ा हुआ नहीं है, हम शुरू से बात कर रहे हैं। नाउ हम लोग को एक एक करके सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे वेरिएंसेस बेसिकली सीखने हैं। सबका एक ही तरीका है, एक समझ गए सब समझ में आ जाएगा। सो मे बी इन फर्स्ट केस जब एक वेरिएंस सीख रहे हैं, मे बी सेल्स और मटेरियल, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप एक बार पकड़ लिए कि ये ऐसे है तो वो सारा एक साथ हो जाएगा एकदम एक बार में। सो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, अभी बीच में कोई डाउट रेज नहीं करेंगे। अगर अभी कुछ पूछना है पहले ही पूछ लीजिए, यू कैन आस्क, बट जब मैं बता रहा हूं मेरे को थोड़ा टाइम देंगे, अदरवाइज मेरे को आप डिस्टर्ब करेंगे कि जबरदस्ती का पहले क्वेश्चन। यू नीड टू गिव मी टाइम to explain you the concept of one particular area, because when I will give time, then in that case you will be able to understand other aspects very fast. बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो किसी को फॉर द टाइम बिंग अभी कुछ पूछना है? अथर्वा, ब्रिज, गरिमा, केदार, केशव, मोहम्मद, एनीबडी, फॉर द टाइम बिंग इज देयर एनी डाउट? डोंट टेक टेंशन, आपका डाउट है तो आप पूछेंगे ही ना, अभी पूछ लीजिए। एनीथिंग टू आस्क? So we are proceeding. Now you need to give me 10-20 minutes without raising any doubts, because then only I will be able to explain the concept very well. So suppose we are talking about sales variance, कि भाई कंपनी का सेल क्या होना था और कंपनी का सेल क्या हुआ। हमें सेल का डिफरेंसेस निकालना है, उसके कारण जो कंपनी को लॉस या गेन हुआ वो निकालना है। फिर से मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं कि 2022 के लिए हमने कोई बजट बनाया था। वैसे हमने कोई बजट लिख के नहीं बनाया था, दिमाग में था।
बिकॉज ऐसे स्टाफ ही नहीं है जिनके साथ बैठकर बजट बनाया जाए, उतना दिमाग ही नहीं है, तो मेरे दिमाग में चलती रहता है। 23 का बजट मेरे दिमाग में है, कहीं लिखकर नहीं बनाया गया। लेकिन जब मैंने बजट बनाया और जब एक्चुअल 2022 बीता है तो कंपेयर तो करना चाहिए ना कि सेल क्या होना था, क्या हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, दैट आई शुड कैलकुलेट। जब मैं ये कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरे यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, मेरे यहां पर 5 प्रोडक्ट है। ACCA, CMA, सीमा, CPA, डिप्लोमा, IFRS, दीज आर द 5 थिंग्स आई एम ऑफरिंग। जब मैंने बजट वगैरह बनाया या मेरा कंडीशन था तो मैंने देखा होगा कौन सा कोर्स में स्टूडेंट कितने आएंगे। हर कोर्स में तो बराबर स्टूडेंट नहीं आएंगे। विच कोर्स इज पिकिंग मोर, वेयर द इंक्वायरीज आर मोर एंड ऑल दैट। तो मैंने अलग अलग बजट बनाया होगा कि भाई ACCA का इतना स्टूडेंट आएगा, सीमा इतना आएंगे, CPA इतने आएंगे, डिप्लोमा IFRS इतना होगा, CMA इतना होएगा। साथ में मैंने ये भी सोचा होगा कि हम ट्यूशन क्लासेस क्या प्राइस पे ऑफर करेंगे, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द ट्यूशन क्लासेस फॉर डिफरेंट कोर्सेस। तो उससे हमारा एक बजट बना कि these are the number of students I will be getting for 5 courses, this will be the price I will be charging। so उससे मेरा बजटेड सेल बन गया। अभी 2022 बीत गया तो 2022 में एक्चुअल सेल अलग अलग सबका पता है, कितना क्वांटिटी हमने सेल किया, कितना स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेस में आया, डेटा इजीली अवेलेबल है, गूगल ड्राइव में, एक्सेल में स्टाफ ने बनाया है, जो मेरे पास भी शेयर किया, मेरे पास है। तो मैं अलग अलग निकाल सकता हूं कि एक्चुअली कितने स्टूडेंट हर कोर्स में आए, क्या प्राइस पे हमने ट्यूशन फीस ऑफर किया और टोटल में हमारा एक्चुअल सेल क्या हुआ। तो एक तो हम निकालेंगे कि जो टोटल सेल 2022 में होना था और जो टोटल सेल 2022 में हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। मान लीजिए टोटल सेल 2022 में 2 करोड़ होना था और 2022 में टोटल सेल 2.2 करोड़ है, यानी कि टोटल में 0.2 करोड़ का गेन, कि हमारा सेल बढ़ने से हमें फायदा हुआ। यह प्रॉफिट नहीं है, यह सेल वैल्यू है कि आपकी सेल 2 करोड़ के बदले 2 करोड़ 20 लाख हुई तो आपको 0.2 करोड़ का फायदा हुआ। यानी कि कोई भी आदमी अगर आपको बोलेगा भाई ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स वेरिएंस बताओ, आपको क्या करना है, जो सेल होनी थी, जो दाम पे होनी थी, टोटल सेल वैल्यू निकाल लीजिए, विच इज कॉल्ड बजट और स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल में सेल हुई, जो एक्चुअल प्राइस सेल का आया, उसके बेसिस पे एक्चुअल निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। फॉर दैट यू कैन प्रेजेंट इन कॉलम, कि मान लीजिए आपने एक कॉलम में बजट लिखा, बजट के अंदर 2 कॉलम बनाया, क्वांटिटी, सेल प्राइस, तो उससे मल्टीप्लाई करके बजटेड वैल्यू आ गया। फिर आपने एक्चुअल लिखा, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल सेल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू आ गया, और फिर दोनों कॉलम को कंपेयर करके डिफरेंस लिख दिया। देयर इज नथिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट हैंकी फैंकी थिंग। लेकिन अगर मैं ये निकाल लूं, इससे मेरे को क्या फायदा होएगा, कुछ नहीं होएगा। इससे मेरे को केवल ये पता चलेगा कि माई सेल इज 20 लाख मोर, भाई ठीक है, खुशी हो लेंगे। आई नीड टू गो इन टू डीप, अंदर जाना होएगा कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस आया है, ACCA के अंदर, सीमा के अंदर, CPA के अंदर, अलग अलग कौन से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं इनको ब्रेक करूंगा। जब तक ब्रेक करेंगे नहीं, देयर इज नो लॉजिक ऑफ कैलकुलेटिंग एनी डिफरेंस। हम ब्रेक करेंगे लॉजिक के साथ कि भाई सेल वैल्यू अगर ज्यादा है या कम है, देयर आर ओनली 2 रीजंस इन द वर्ल्ड। मे बी द क्वांटिटी वी सोल्ड आर मोर देन व्हाट बजटेड क्वांटिटी वाज देयर। जितने स्टूडेंट आने थे, ज्यादा स्टूडेंट लोग आए हैं, इसके कारण ज्यादा सेल हुआ है। या हो सकता है कि जो सेल प्राइस, जो दाम में हमें प्रोडक्ट ऑफर करना था, हमने एक्चुअल में ज्यादा दाम में प्रोडक्ट ऑफर किया है, मतलब प्राइस ज्यादा है। उल्टा भी हो सकता है, मे बी द प्राइस इज लेस एंड ऑल दैट। यानी कि हम उस वेरिएंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। वी विल ब्रेक डाउन द वेरिएंस इनटू 2 पार्ट्स। वन इज सेल्स प्राइस वेरिएंस, वन इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस के कारण द गेन और लॉस, क्वांटिटी के कारण द गेन और लॉस। क्वांटिटी को वी आर सेइंग वॉल्यूम। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल प्राइस का डिफरेंस, सेल क्वांटिटी का डिफरेंस। डिफरेंस आपको लिखना है बजट माइनस एक्चुअल, एक्चुअल माइनस बजट, आपकी मर्जी है। मेरी ऑलवेज मर्जी है बजट माइनस, मेरे को याद नहीं रखना है, मेरे को थोड़ा एग्जाम के लिए मैकेनिकल बनना। आई विल ऑलवेज राइट बजट माइनस एक्चुअल,
बट देयर इज नो रूल दैट यू नीड टू राइट बजट माइनस एक्चुअल। तो मैं क्या करूंगा, सीएमए के अंदर व्हाट शुड बी द सेल प्राइस, कि मेरे को एक स्टूडेंट से क्या चार्ज करना था, और एक्चुअल में मैंने एक स्टूडेंट से क्या चार्ज किया है। आप बोलेंगे सर आप एक्चुअल में हो सकता है कुछ अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग फीस लिए होंगे, हमारे यहां ये नहीं है, सबसे सेम फीस चार्ज की जाती है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे आप लंदन में हो, पेरिस में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कहीं भी हो, एवरीवेयर द फीस इज रिटन सेम, मतलब फिक्स प्राइसिंग पॉलिसी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, B2B है, B2C है, होलसेल है, रिटेल है, ये मार्केट है, वो मार्केट है, हजारों बातें हैं यार। तो आपका जो एक्चुअल सेल क्वांटिटी है वो अलग अलग दाम पे हुआ है, आप उसका एवरेज प्राइस निकाल लीजिए कि टोटल में जो एक्चुअल सेल सीएमए का हुआ डिवाइडेड बाय सीएमए का स्टूडेंट, व्हाट इज द एक्चुअल सेल प्राइस। बिकॉज आप उसके अंदर और भी डिटेल में जा सकते हैं, होलसेल वाला अलग, रिटेल वाला अलग, ये मार्केट अलग, वो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन एग्जाम में और कितना अंदर जाएंगे। तो हम लोगों को एग्जाम में एक्चुअल प्राइस एक ही देगा, चार देगा ही नहीं। बट दैट डजंट मीन दैट द एक्चुअल प्राइस इज ओनली वन, दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टोटल एक्चुअल वैल्यू बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल सेल प्राइस। हमारे केस में ये 0 आएगा, बिकॉज मैंने 3 साल से फीस चेंज की ही नहीं है, लास्ट 3 ईयर से सेम फीस है, जो भी 3 साल से ज्वाइन किए हैं, देयर इज नो चेंज इन द फीस, जो फीस पहले से है वही फीस है। तो मेरे केस में तो सेल प्राइस वेरिएंस लड्डू, बिकॉज द डिफरेंस इन द सेल प्राइस सीएमए यूएस 58,199, एक्चुअल 58,199, इट्स 0। बट हर ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा नहीं होएगा ना, सेल प्राइस डिफरेंस बजट और एक्चुअल में कुछ होगा। हो सकता है कि एक्चुअल सेल प्राइस इज ग्रेटर देन बजटेड प्राइस, हो सकता है कम। अगर एक्चुअल ज्यादा है फेवरेबल, अगर एक्चुअल कम है खराब, एडवर्स। ये सिंपली समझ में आ रहा है कि सेल प्राइस ज्यादा मतलब अच्छा हुआ, फेवरेबल। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे केस में भी एक्चुअल सेल प्राइस अलग है, द बजटेड प्राइस सेलिंग प्राइस वाज 58,199 बट द एक्चुअल प्राइस इज 60,000, यानी कि हमारा सेल प्राइस 58 के बदले 60, 2,000 ज्यादा है। हमने ज्यादा दाम पे प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके कारण, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग टू थिंक, कैन आई से दैट कि सेल प्राइस बढ़ने के कारण मेरे को 2,000 का फायदा हुआ? नहीं बोल सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है क्या, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे सबसे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा कि टोटल में सेल प्राइस बढ़ने से क्या फायदा हुआ। मान लीजिए सीएमए का मैंने सोचा था 200 स्टूडेंट पढ़ेंगे, लेकिन सीएमए का प्राइस बढ़ने के कारण हमने सेल प्राइस बढ़ा दिया, तो 200 के बदले 180 स्टूडेंट ही आए, 180 स्टूडेंट ही पढ़ने आए। तो सेल प्राइस का डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया, 58 के बदले 60,000, लेकिन मेरे को निकालना है जितने भी स्टूडेंट हमने पढ़ाए, जितना भी क्वांटिटी हमने सेल किया, उसके ऊपर हमें टोटल में क्या फायदा हुआ। I cannot multiply the difference by 200. Why? Because 200 is not the actual result. The actual result is 18,180. मेरे को निकालना है कि जो बजट है और जो एक्चुअल है दोनों में अंतर क्या है। तो मेरे को यह देखना है कि जो प्राइस का डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, लेकिन हमने जितने भी यूनिट सेल की है उस पे ये प्राइस का डिफरेंस के कारण इतना सेल बढ़ा या इतना सेल गिरा। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस with the actual quantity। या कोई बोलेगा सर मैं ऐसा करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने बेचा है उसको बजटेड सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि ये क्वांटिटी का सेल वैल्यू क्या होना था बजटेड प्राइस के बेसिस पे, और यही एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि सर इसका एक्चुअल सेल क्या होना था। तो दोनों में डिफरेंस भी तो वही बनेगा। आपको पर यूनिट डिफरेंस लेकर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, पहले अलग अलग क्वांटिटी, आपकी मर्जी है। बट यू कॉन्सेंट्रेट हियर, आई एम नॉट टेकिंग हियर द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी, बिकॉज दिस इज प्राइस वेरिएंस। जिस चीज का डिफरेंस है, जिस चीज का वेरिएंस है उसका डिफरेंस लेना है। प्राइस वेरिएंस सेल प्राइस का डिफरेंस, सेल प्राइस क्या होना था, सेल प्राइस क्या हुआ, 1 यूनिट तो है नहीं, ये तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। जितना यूनिट्स आपने ऑफर किया, बेचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ऐसे करता हूं, आप कैसे भी कर सकते हैं। चुपचाप से आंसर सही लाना है,
कोई नहीं बोल सकता मेरा सही है आपका गलत है, आपका सही है मेरा गलत है, मेरी मर्जी जैसे मैं करूं। सेल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस लिया, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया कितना फायदा लॉस हुआ प्राइस के चेंज होने से सीएमए यूएस प्रोडक्ट में। अब सीएमए यूएस का हमें वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। हमें 200 स्टूडेंट को पढ़ाना था, हमने 180 को पढ़ाया, तो हमने 20 स्टूडेंट कम पढ़ाए, वॉल्यूम 20 कम। लेकिन ये जब भी वेरिएंस निकालेंगे इट इज लॉस और गेन इन वैल्यू। यू कांट से वेरिएंस इन केजी, इन लीटर, इन पीस एंड ऑल दैट, यू नीड टू से इन वैल्यू कि आपको ये करने से कितना का नुकसान हुआ, कितने का फायदा हुआ। सो यू आर कंपेयरिंग 200 टू 180, बट वो आंसर नहीं है। 200 टू 180 ये दिखा रहा है भाई एडवर्स है, 20 कम पढ़ाया, लेकिन 20 कम पढ़ाने से कितना सेल कमती हुआ। कम पढ़ाने से, स्टूडेंट कम आने से सेल कम होएगा ना, क्योंकि आपका टोटल में जो वेरिएंस है उसमें वो कम है, तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा एक यूनिट का सेल प्राइस से। कौन सा? एक्चुअल नहीं, बिकॉज प्राइस वेरिएंस आप अलग से निकाल रहे हो। एक्चुअल प्राइस के कारण जो फायदा लॉस हुआ आप निकाल चुके। आप वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल प्राइस नहीं लेंगे, 58,000 से यूज करेंगे, यानी कि आप क्वांटिटी का डिफरेंस इंटू 58,000 करेंगे तो आपको मिलेगा कि 20 स्टूडेंट कमती पढ़ाने से कितना सेल कम हुआ। आप अगर इसको ब्रेक करते हैं, यू सी दैट आई सेड 58,000 to 60,000 चेंज इन प्राइस इंटू 180, देन आई एम सेइंग 200 to 180 डिफरेंस इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 58,000। आप इनको तोड़ फाड़ कर दीजिए। मान लीजिए आपने किया, पहले हमने बोला 58,000 इंटू 180 माइनस 60,000 इंटू 180, हमने वहां ये बोला बिकॉज 58,000 माइनस 60,000 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 58,000 इंटू 180 माइनस 60,000 इंटू 180। और ये दूसरा वाला मैंने क्या किया, क्वांटिटी 200 एंड 180 मल्टीप्लाइड बाई 58,000, यानी कि दूसरा वाला हमने किया 200 इंटू 58,000 माइनस 180 इंटू 58,000। अब ध्यान देंगे जो पहला वाला पोर्शन प्राइस वेरिएंस है उसमें भी मैंने किया है 60,000, माने पहले लिखा है 58,000 इंटू 180, और जो दूसरा वाला उसमें भी 58,000 इंटू 180 मैंने लिखा है, वो दोनों जगह से गायब हो रहा है। अल्टीमेटली मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपको अगर ध्यान देना है, ऐसे ही मैं मिटा दूंगा इसको, आई विल जस्ट रिमूव इट। आई एम सेइंग दैट इन माई केस it is 58,000 minus 60,000 into 180 actual students, and then it is 200 minus 180 into the price 58,000। अगर हम इनको तोड़ फाड़ करते हैं तो 58,000 इंटू 180 यहां है, और यहां पर भी माइनस 180 इंटू 58,000 है, दोनों अगर इसके बीच में प्लस साइन डाल दे तो बीच में प्लस डालने से दिस पोर्शन एंड द फर्स्ट पोर्शन इज गेटिंग कैंसिल्ड, यानी कि आपके पास आएगा क्या, बेसिकली आएगा माइनस 60,000 इंटू 180, और यहां प्लस क्या आएगा 200 इंटू 58,000। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेट। द बजट वॉज देयर दैट आई विल बी टीचिंग 200 CMA स्टूडेंट्स, एंड द बजट वॉज देयर दैट आई विल बी चार्जिंग सेल प्राइस 58,000। ये आपका बजट है, और ये क्या है, द एक्चुअल सेल प्राइस आर चार्ज 60,000 एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 180। ये आपका एक्चुअल सेल है और ये आपका बजटेड सेल है। दोनों का डिफरेंस आपने पहले निकाला। जब मैंने शुरू में बोला कि मेरे को सेल वेरिएंस निकालना है, आई नीड टू कैलकुलेट सेल वेरिएंस, तो मैंने क्या बोला, कितना क्वांटिटी सेल होना था, कितना क्वांटिटी क्या प्राइस पे, एक्चुअल में क्या सेल हुआ और एक्चुअल में दाम, ये हमने निकाला। लेकिन इसको हमको तोड़ना है, डिटेल में जाना है। तो हमें दिख रहा है कि प्राइस के कारण हमें इतना फायदा हुआ, क्वांटिटी के कारण हमें इतना लॉस हुआ, प्राइस के कारण इतना सेल बढ़ा, क्वांटिटी के कारण इतना सेल गिरा।
अल्टीमेटली दोनों मिलाएंगे तो ये टोटल के बराबर आएगा. इफ वी डोंट गो इनटू डीप देन देयर इज नो पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस. अगर मैंने ये निकाल लिया कि मेरा सेल वैल्यू गिरा है या बढ़ा है, क्यों 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 करने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा. दिस इज डिटेल एंड दिस इज व्हाट डू यू से इन टोटैलिटी. ये टोटैलिटी में वेरिएंस कभी भी टोटैलिटी में निकाल के कोई फायदा नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गो इनटू डिटेल. बोलेगा सर डिटेल में क्या होगा. अब मेरे यहां तो अलग अलग सेल्स मैनेजर ये सब नहीं है भाई, बट जहां पर आप नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सेल्स मैनेजर है. सेल्स मैनेजर का काम क्या है, सेल लाना. सेल्स मैनेजर ने दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ाया, उसलिए क्या हुआ कि भाई क्वांटिटी कम बिकी. क्या ये अच्छा है. प्राइस बढ़ाकर क्वांटिटी कम बेचना क्या अच्छा है. देखना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ाने से मार्केट में कॉम्पिटिटर लोग क्या किए, लोग कस्टमर्स उनके यहां चले गए कि नहीं गए, कि हमारे को प्राइस बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं हुआ. बट हम उसके साथ सलाह मशवरा बैठ के करेंगे ना कि भाई यू आर द सेल्स मैनेजर एंड बिकॉज ऑफ यू देयर इज अ लॉस और गेन इन द ऑर्गेनाइजेशन दिस मच. वी नीड टू गो इनटू डीप कि भाई आपने प्राइस बढ़ाया, ये गलत था क्या, अभी आगे जाते हुए प्राइस बढ़ाएंगे कि नहीं, और प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी कमती हुआ क्या, कि मे बी मार्केट ही डाउन है. हमें ये चेक करना पड़ेगा सो दैट आगे के लिए वी कैन प्रिपेयर अ बेटर प्लान. गलती हुई, अच्छा हुआ, ओके, बट वो गलती सही के ऊपर नजर डालना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप आगे का परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं. आगे का बजट, आगे का आउटकम को आप बना सकते हैं, सुधार सकते हैं. बोलने का मतलब ये हुआ मैंने कोई डेटा नहीं दिया यहां पर, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेशंस कर रहा हूं. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैलकुलेशन तो करेंगे बच्चे लोग, जो जूनियर ऑपरेशंस स्टाफ है. अगर आप सीनियर स्टाफ है, अगर आप मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं, आपको ये कैलकुलेशन पका पकाया मिलेगा. आपको उसके डीप में जाना है, आपको मैनेजर को समझाना है भाई तुम्हारी गलती क्या है, क्या इश्यू है. और हो सकता है हर एक चीज के डीप में आप नहीं जाएंगे, दे आर नॉर्मल, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही. यू विल बी गोइंग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यू विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन दोज एरियाज जहां पर एक्चुअली गड़बड़ है, एक्चुअली अच्छा है. लेकिन वेरिएंस को डिटेल में निकालना पड़ेगा. तो मैं अगर ये वेरिएंस निकाला हूं, ये मैंने पांचों प्रोडक्ट का निकाला है, पांचों के लिए मैं ये भी निकालूंगा, पांचों का प्राइस वेरिएंस, पांचों का वॉल्यूम वेरिएंस, सब निकालेंगे. तो हमें एक टोटल सेल्स वेरिएंस का ब्रेकअप मिलेगा. उसके बाद भी और ब्रेकअप है, वो ब्रेकअप हम बाद में बात कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं. केवल यहां पर एक चीज और ध्यान देना है. अगर सेल प्राइस 58 के बदले 60,000 है, then in that case exactly 2000 is giving you income, because हर एक स्टूडेंट से अगर ज्यादा पैसा मिला वो सीधा सीधी इनकम बढ़ा देगा. लेकिन अगर क्वांटिटी 200 के बदले 180 है और एक स्टूडेंट से 58,000 सेल प्राइस है, तो 20 स्टूडेंट कम आने से इनकम 20 इंटू 58,000 कम नहीं होगी, वो तो सेल कम होगा. अगर आपका क्वांटिटी कम होगा तो खर्चा भी तो कम लगेगा. हमारे यहां भी 20% वेरिएबल कॉस्ट है, जीएसटी वगैरह, कि अगर स्टूडेंट 20 नहीं आए तो 20 के कारण इंटू 58,000 का लॉस नहीं हुआ, वो तो सेल कम हुई, लॉस तो हुआ इंटू 80% ओनली. यानी कि अगर आपको ये वेरिएंस ये सोचकर निकालना है कि ये सेल के कारण प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, तो यहां पर आपको 58,000 के बदले क्या लेना है, प्रॉफिट. यहां पर भी आपको 58,000 ये जो है इसके बदले आपको क्या लेना है, प्रॉफिट. यहां पर भी 60,000 के बदले क्या लेना है, प्रॉफिट. प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन वॉट एवर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. कोई कोई क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट डिटेल ही है तो आप प्रॉफिट के बदले कंट्रीब्यूशन बोलोगे. कोई कोई क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों है तो आप प्रॉफिट बोलोगे. ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू, आई एम सेइंग प्रॉफिट पर यूनिट, बेसिकली प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल्स टू बजटेड सेल प्राइस
माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, फिक्स भी होगा, वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये आएगा, सर आप ये बजटेड कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? आप ये समझिए, ये वाला जो प्रॉफिट है 60,000 के बदले है, ये कैसे निकलेगा? 60,000 माइनस बजटेड कॉस्ट, और ये 58,000 के बदले है, ये कैसे निकलेगा? 58,000 माइनस बजटेड कॉस्ट। मतलब आप यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट यूज नहीं करेंगे। क्यों? दिस इज सेल्स वेरिएंस। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेल्स मैनेजर। अगर मैं सेल्स मैनेजर हूं और मान लीजिए केशव प्रोडक्शन मैनेजर है, नीव लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब है, तो अगर खर्चा कम बेसी लगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्या? अगर मटेरियल का पैसा बेसी लगा, लेबर का पैसा बेसी लगा, उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, मैं क्यों हूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। दिस इज कैलकुलेटिंग सेल्स वेरिएंस। वी आर कैलकुलेटिंग सेल्स के कारण प्रॉफिट पे फर्क, बट मटेरियल के कारण, लेबर के कारण हम अलग से निकालेंगे। वो हम लोग नींव के लिए, वो हम लोग केदार के लिए अलग से निकालेंगे। तो आपको इस पूरा कैलकुलेशन में एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में से ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट के लिए सेल्स मैनेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उनका काम ही नहीं है कॉस्ट लगाना। तो आप अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप 60,000 में से एक्चुअल कॉस्ट नहीं, बजटेड कॉस्ट लेस करोगे, और बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 50,000 में से भी बजटेड कॉस्ट लेस करोगे। मान लीजिए कॉस्ट है 20,000 रुपए, बजटेड, एक्चुअल अलग हो सकता है। आप बोलोगे बजटेड प्रॉफिट 58 माइनस 20,000 38,000, और एक्चुअल प्रॉफिट 60 माइनस 20 40,000। वो कि एक्चुअल है नहीं वो, बिकॉज एक्चुअल तो एक्चुअल कॉस्ट लेस करके आएगा, बट यहां पर इसी को एक्चुअल बोला जाएगा। यानी कि अगर आप दोनों में से 20,000 लेस करते हो, द आंसर विल रिमेन सेम। 58,000 माइनस 20, 60,000 माइनस 20, द डिफरेंस विल रिमेन 2,000 ओनली। बट यहां पर फर्क पड़ जाएगा। यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया था 58 से, लेकिन आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 58 माइनस 20 38 से, बिकॉज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 58,000 यू आर गेटिंग सेल वैल्यू का डिफरेंस। बट आई वॉन्ट, बिकॉज ऑफ सेल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इनकम? मेरे को निकालना है सेल के कारण इनकम पे इफेक्ट। तो क्वांटिटी कमती होने से प्रॉफिट कितना कम होगा? 58 नहीं, 38। आप बोलेंगे सर एक्चुअल कॉस्ट, उसका डिफरेंस अलग से निकालेंगे, वो अलग वेरिएंसेस है। अगर एक साथ निकालना है तो फिर ऐसे ही देख लेते हैं, 5 करोड़ कमाना था, 5 करोड़ 5 लाख कमाए, हो गया खत्म। किसको पकड़े? सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, लेबर, किसको पकड़े? तो फिर वेरिएंस का कोई मतलब ही नहीं है। एवरीथिंग इज सेपरेट। इसीलिए यहां पर हमें बजटेड फिगर लेना है, बिकॉज प्राइस का डिफरेंस हमने यहां ले लिया। अभी प्राइस का डिफरेंस यहां नहीं लेना है, लेकिन वैल्यू तो निकालना होगा, तो हम बजटेड प्राइस लेकर चल रहे हैं। इन ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम्स, ऑल, आई एम नॉट सेइंग वन, ऑल, when you calculate sales variance, you are not calculating sales variance as sale ka difference. You are calculating sales variance as because of change in quantity, because of change in sale price, effect on income. कंपनी के इनकम में क्या फर्क पड़ा? तो सेल प्राइस के बढ़ने से इनकम बढ़ी, क्वांटिटी कमती बिकने से इनकम गिरी। सेल प्राइस के बढ़ने से आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। आइदर यू टेक 58,000 माइनस 60,000 और यू टेक 38 माइनस 40, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दोनों में से 20,000 कॉस्ट लेस होएगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है। यहां पर अगर आप इंटू करते हैं 58,000 से, वो प्रॉफिट पे फर्क नहीं है। आप 38,000 से करेंगे तभी प्रॉफिट पे फर्क आएगा। तो वापस से अगर मैं इसको 38, इसको 40, यार, फिर वापस से इसको 38 कर दूं, तो आप ध्यान दीजिए 38,000 इंटू 180 एंड 40,000 इंटू 180, और यहां से 38,000 इंटू 180 यहां से भी आएगा, दोनों कट गया। डिफरेंस आपका इनकम पे क्या फर्क आया वो आएगा ड्यू टू सेल प्राइस, ड्यू टू सेल क्वांटिटी, नॉट ड्यू टू हम लोगों को ऑलवेज प्रॉफिट पर यूनिट लेना है
कॉस्ट पर यूनिट माने सेल प्राइस पर यूनिट से सम नहीं करना है। सेल प्राइस वेरिएंस में आप कुछ भी करिए, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस में यू विल डू कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। एवरी क्वेश्चन विल गिव यू कॉस्ट डिटेल्स, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में सेल्स वेरिएंस डजंट मीन दैट अफेक्ट ऑन द सेल्स वैल्यू। Sales variance means effect on the income because of change in sale price, because of change in quantity, and don't consider actual cost in the entire. Actual cost दूसरे काम के लिए दिया है, और अगर sales variance पूछा है तो निहारने के लिए दिया है, कोई काम नहीं। ऐसी गुगली है। आपको एक्चुअल कॉस्ट लेना है जब मटेरियल लेबर कॉस्ट वाइज वेरिएंस निकालेंगे, जब परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकालेंगे। वेरिएंस है वो यहां नहीं डालना है। प्लीज डोंट कंसीडर एक्चुअल कॉस्ट डिटेल्स। budgeted and actual profit और कंट्रीब्यूशन। बिकॉज क्वेश्चन में क्या होगा मेरे को क्या मालूम भाई, फिक्स कॉस्ट नहीं है। पर यूनिट विल बी calculated after deducting budgeted cost per unit only. Please don't consider actual cost details. Budgeted and actual profit per unit जो आपको निकालना है वो आपको बजटेड कॉस्ट लेस करके ही निकालना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कॉस्ट का डिफरेंस वेरिएंस नहीं है, बट वो सेल्स मैनेजर से रिलेटेड नहीं है। हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना है अलग अलग डिपार्टमेंट पर्संस के लिए, इसलिए सेक्ट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और हमें सेल्स वेरिएंस, सेल्स का डिफरेंस नहीं निकालना है। सेल्स के कारण अफेक्ट ऑन द इनकम ऑफ द कंपनी, इसलिए हम प्रॉफिट से सम करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट से, सेल प्राइस से नहीं। आपको यहां पर भी प्रॉफिट पर यूनिट लेना लीजिए, कोई फर्क नहीं है, बट सेल प्राइस और प्रॉफिट प्राइस से कोई फर्क आएगा नहीं इस वाले, लेकिन इधर फर्क आएगा, टोटल में फर्क आएगा। आपको ध्यान देना, यू नीड टू कैलकुलेट वेरिएंस बेस्ड ऑन अफेक्ट ऑन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन सेल प्राइस और क्वांटिटी, आपको वो निकालना है। ये बात को मैंने बताया। ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा सिंपल या डिफिकल्ट, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला जान लेंगे, याद कर लेंगे, सर ने याद करने से होएगा ही नहीं। व्हेन यू आर डूइंग 1 or 2, 3 प्रॉब्लम्स, बी फोकस्ड, एकदम समझ के, आंसर देखे बगैर, ध्यान से सोच कर समझ कर लिख कर करिए, फिर आंसर देखिए। गलत होगा समझ में आएगा, लेकिन पहले ही क्वेश्चन और आंसर, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट टाइम बचाना चाहते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, समझ में आ गया, हो गया। ये सबसे खराब स्टडी पर। इसके बढ़िया आप 50 क्वेश्चन नहीं करके 10 ही करिए, 5 ही करिए, अपने आप करिए, लिख के करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आगे का क्वेश्चन लिखने के बजाय कैलकुलेटर में ही करना चालू कर दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन शुरू में ही ऐसे स्पीड मत बनाइए कि आप गिर जाएं और खड़े ही कभी ना हो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैंने भी बहुत गलती की है जिंदगी में, सीख कर, गिर कर समझें। तो जब आपको गिरने से बचाना चाह रहा हूं, यू नीड टू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग। इसके बेसिस पे यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले बोला कि सेल वेरिएंस निकालना है, तो सेल प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग। सेल प्राइस मतलब आपका सेल प्राइस प्रोडक्ट का क्या होना था, क्या हुआ, उसके कारण क्या लॉस गेन हुआ। सेल वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी कम थी, बेसी बेचने से क्या फायदा लॉस हुआ। ये सब जो लिखा हुआ है आपको AQAP ये सब लिखना है, लिखिए, मत लिखना है मत लिखिए। मेरे को ऐसा लगता है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस, इतना लिखने का टाइम है नहीं एग्जाम में। तो आप बोलेंगे AQAP लिखने से मार्क्स काटेगा, डंडा पड़ेगा अगर वो मार्क्स काटेगा। कोई मार्क्स नहीं काटना है। कोई कोई तो कुछ नहीं लिखता है, सीधा फिगर ही लिख देगा
कि भाई 200 इंटू दिस, सीधा ही लिख देंगे, क्या जरूरत है. सो एब्रीविएशन इज ए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन. इफ यू राइट इन द एग्जाम देयर इज नो प्रॉब्लम. A Limited makes sandwiches and other breads based snacks. मॉर्निंग है, नाश्ता करने का मन कर रहा होगा, सोचिए सैंडविच खा रहे हैं. मे बी somebody is having with the class because I never asked that you need to open your video. नहीं जरूरत है, आप क्या कर रहे हैं करिए, बस कॉन्सेंट्रेट करिए. So A Limited makes sandwiches and other bread based snacks which it sells in bulk to डेलिकेटिसिन शॉप. मतलब B2B बिजनेस है, हम लोग कस्टमर को नहीं बेचते, हम लोग ब्रेड सैंडविच वगैरह बनाकर जो क्या बोले रिटेलर्स लोग को देते हैं, वो लोग कस्टमर को देते हैं. बोले यार कोई मतलब है, यहां हो सकता है नहीं मतलब, लेकिन आप क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त उसका फील नहीं ले रहे हैं. मतलब है, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, आप थ्योरी अच्छा नहीं लिख पाओगे, आप जनरल थ्योरी लिखोगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होएगा. एक पहला लाइन से फोकस, इसका अभी जो पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है क्या बे, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द इंटायर बिजनेस क्या है, तभी तो दूसरे को एडवाइस करेंगे. ए लिमिटेड मेक्स सैंडविचेस एंड अदर ब्रेड बेस्ड स्नैक्स विच इट सेल्स इन बल्क टू डेलिकेटिसियन शॉप्स. मान लीजिए हमारे यहां नीचे एक फैक्ट्री है सुगर एंड स्पाइस, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं. ब्रेड का आइटम बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, एक रिटेल शॉप भी है, पूरे कलकत्ते में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. आप भी कुछ और सोच लीजिए, जो भी सोचना हो यार, जिससे कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान आने लगे. मेक पिक्चर. व्हेन यू मेक पिक्चर इमेजिनेशन प्रॉपरली, द सम्स विल बिकम वेरी इजी. द ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज रॉ मटेरियल विच कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्रेड एंड अदर लोअर वैल्यू इंग्रेडिएंट्स. उनका रॉ मटेरियल ब्रेड है, हो सकता है ब्रेड नहीं बनाते हैं, खरीदते हैं. वैसे मेरे यहां शुगर एंड स्पाइस जो है नीचे, वो ब्रेड खुद बनाता है, और अदर लोअर वेल इंग्रेडिएंट्स भी है. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच केजी ऑफ प्रोडक्ट इज $4. अब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहां पर 50 नहीं बता रहे, बिकॉज शुगर एंड स्पाइस सेलिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ये बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक माने प्रोडक्ट यूनिट बनाने में $4 खर्चा पड़ता है. इन प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर 2017, मान लीजिए हम इसको 2022 ही बोल देते हैं. आरबी लिमिटेड एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस ऑफ $6 पर केजी फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ 48,000 किलोग्राम्स. ये लोग सैंडविच वगैरह को केजी में बोल रहे, बोलने दो भाई, ऐसे तो केजी में नहीं होता, पाउंड होता है, जो भी ठीक है. बोल रहा है कि 2023 में हमने बजट बनाया है कि हम लोग $6 करके 1 केजी सैंडविच बेचेंगे और 48,000 केजी बेचेंगे. ये हमारा बजट है. दिस इज अवर फोरकास्ट. हाउएवर ड्यूरिंग 2023 खत्म हो गया, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो जनवरी चल रहा है. आरबी एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स वेयर एडवर्सली अफेक्टेड बाय डिमिनिशिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन ब्रेड बेस्ड प्रोडक्ट्स. ब्रेड खाने में पेट के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आप भी जानते होंगे, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड हो, जो भी, ब्रेड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो बोल रहे हैं कि भाई मार्केट में ऐसा एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स वेयर एडवर्सली अफेक्टेड, माने हम नहीं, सारे कॉम्पिटिटर अफेक्ट हुए हैं कि ब्रेड आइटम कंज्यूमर खाना नहीं चाह रहा है. आरबी सोल्ड ओनली 37,000 किलोग्राम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. बजट से एक्चुअल बहुत कम, बहुत कम. कारण मार्केट खराब, कंज्यूमर्स आर मोर नॉलेजेबल, they don't want to eat breads and all that. So हमारा भी सेल गिरा है, कॉम्पिटिटर लोग का भी गिरा है. A managing director recently explained how his company attempted to respond to the difficulties faced in 2023. बोला आरबी मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली एक्सप्लेन्ड, उसने बताया हाउ कंपनी अटेम्प्टेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिफिकल्टी. जब लोग ब्रेड नहीं खा रहे हैं तो हमने कैसे क्या किया. फर्स्ट वी reduced our selling price from 6 to 5.9. बोला मैंने सेल प्राइस गिरा दिया, भाई क्या करते. This was a modest price reduction in comparison with those of our smaller competitors. This was a modest price reduction in comparison. मतलब कॉम्पिटिटर ने हो सकता है ज्यादा गिराया होगा, हमने उतना जोर का प्राइस नहीं गिराया. Second, we took advantage of falling market prices for some of the type of filling we use as a raw material for our products.
दूसरा, हमने जो रॉ मटेरियल वगैरह उसमें थोड़ा हमने खर्चा गिराया. वी टुक एडवांटेज ऑफ फॉलिंग मार्केट प्राइसेस फॉर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉलिंग वी यूज एज अ रॉ मटेरियल. जब ब्रेड का आइटम बिकना बंद हो गया तो उसका रॉ मटेरियल का दाम भी कम हो गया, तो हमने वहां पर थोड़ा बचाया. अब वैसे ये क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट के बारे में कुछ है नहीं. जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया, परचेज मैनेजर, आपको प्राइस से मतलब है नहीं, लेकिन जस्ट बता रहा है कि मार्केट से लड़ने के लिए हमने ये 2 स्टेप लिए. थोड़ा सा दाम गिरा दिया कि भाई थोड़ा सेल हो पाए, थोड़ा खर्चा हमने गिराया बिकॉज इंग्रेडिएंट्स कम दाम में अरेंज कर लिए, और हमने कैसे ना कैसे अपने आप को बचाया. बोला सेल प्राइस वेरिएंस निकालो. सेल प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस का डिफरेंस. आपका ये एक्चुअल प्राइस है और आपका ये बजटेड प्राइस है. ये प्राइस का डिफरेंस है 0.05 डिफरेंस स्टैंडर्ड से एक्चुअल. कितना क्वांटिटी बेचा? 37,000. 48 से मतलब नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर आपका 48,000 बिकेगा तब तो प्रॉफिट पे 48,000 का फर्क आएगा ना. यू हैव सोल्ड 37,000, तो आपका प्रॉफिट 37,000 का प्राइस डिफरेंस के कारण ही अफेक्ट हुआ है. सो व्हेन यू कैलकुलेट प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस इन प्राइस इनटू क्वांटिटी. मैं इतना जोश में करता नहीं हूं. मैं तो 0.05 इंटू 37,000 विल बी 1850 मुंह से ही आ जाएगा. 1850, 37,000 10 पैसे 3700, 5 पैसे 1850, स्टोरी खत्म. आपको जैसे लिखना हो, इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन. प्राइस का डिफरेंस इंटू क्वांटिटी. वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए. वॉल्यूम का डिफरेंस 3748, वॉल्यूम का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट. प्रॉफिट के अंदर आपका प्राइस के कारण जो डिफरेंस है वो आ चुका. अब आप एक्चुअल डेटा नहीं लेंगे, बजटेड डेटा. तो हम लोग बोल रहे हैं $6 में बेचना था और $4 कॉस्ट होना था, तो पर सैंडविच इनकम क्या होना था? $2. ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन आपका इनकम प्राइस के कारण जो हुआ वो तो आपने निकाल लिया. आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी के कारण कंपनी के प्रॉफिट में क्या वृद्धि हुई, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ. तो क्वांटिटी तो कम है, 48 के बदले 37. 11,000 यूनिट्स पे आपको $2 करके कमाना था, आप नहीं कमाए, तो 22,000 का लॉस. So if I am there in the exam, what I will do? I will do 6 minus 5.95 into 37,000. Then I will do 48,000 minus 37,000 into 2. ये वाले को हम ऐसे भी कर सकते हैं. 6 minus 2 is 4 and 5.95 minus 6 minus 4 is 2 and 5.95 minus 4 is 1.95. The whole thing into 37,000. मेरी मर्जी, डिफरेंस यहां पर यही रहेगा जो है. प्राइस चेंज होने के कारण इनकम में फर्क. तो आप अगर प्राइस, सेल प्राइस का डिफरेंस ले या मार्जिन का डिफरेंस ले, प्रॉफिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पड़ता है. हियर यू कैनॉट मल्टीप्लाई विथ 6 because of change in the quantity, the effect on income is not into 6. Because of change in quantity, the effect on income is only $2. जितना प्रॉफिट होगा यूनिट्स पे उतना ही तो कम हुआ ना. यहां पर एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे? एक्चुअल कॉस्ट अगर कम लगा है, बेसी लगा है, डिटेल भी नहीं है, वैसे एक्चुअल कॉस्ट डिटेल दिया ही नहीं है. वो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ओवरहेड, वो लोग है, वो सेल्स मैनेजर नहीं है. ये सेल्स मैनेजर के लिए वेरिएंस है, ये सेल्स पार्ट है. सो वी डोंट यूज एक्चुअल डेटा. एक्चुअल डेटा हम क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, सेल वेरिएंस है, क्वांटिटी कितना कमती बेसी बेचे, बट एक्चुअल कॉस्ट डिटेल नहीं लेना है. सो मैं अगर होऊंगा, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन वैसे किसी के नहीं आ रहे, नाइदर इन सीएमए नाइदर इन एसीसी, बट फिर भी अगर हम होंगे, मल्टीपल चॉइस है, कोई लिखने का क्या काम है इसमें. कैलकुलेटर में 0.05 डिफरेंस इंटू 37,000, कैलकुलेटर में 12,000 डिफरेंस इंटू $2. 12,000 इन 11,000 इंटू 2, 22,000. स्टोरी फिनिश. लेकिन माइनस प्लस आंसर नहीं लिखना है. आपका सेल प्राइस कम, पैसा कम आया, खराब हुआ, एडवर्स. जो भी आंसर आएगा एडवर्स. आपने क्वांटिटी कमती बेचा, कमती फायदा हुआ, जो भी आंसर आएगा एडवर्स. देयर इज नो लॉजिक रिक्वायर्ड की एडवर्स की फेवरेबल है. माइनस प्लस आंसर नहीं लिखना है. लेकिन अगर ये एडवर्स आपको जैसे 22,000 एडवर्स,
एग्जाम में आपको 22,000 एडवर्स आंसर दिया है, बोला बताइए बजटेड क्वांटिटी क्या था। अब आपको इधर माइनस लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट मिसिंग डेटा, यू नीड टू पुट फॉर एडवर्स फेवरेबल माइनस प्लस। आप बोलेंगे सर मैंने माइनस लिखकर सॉल्व किया, लेकिन मैंने 37 माइनस 48 मान लिया। फिर आपकी मर्जी है, मैं एकदम मन में फिक्स कर चुका हूं, पहले बजट फिर एक्चुअल, पहले बजट फिर एक्चुअल, ये मेरा फिक्स्ड रूल है। और ये ध्यान कर लिए कि जब प्राइस का डिफरेंस निकालना है तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इतने क्वांटिटी पे प्राइस के कारण, और जब क्वांटिटी का डिफरेंस निकालना है इनटू बजटेड रेट, बिकॉज प्राइस का डिफरेंस ऊपर ले चुके। दैट मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मैं अगर नींद में भी हूं, कभी भी हूं, आज 25 साल हो गए, मैं ऐसे ही करूंगा। देयर इज नो रूल दैट यू नीड टू राइट 5.95 बाद में, आप ऐसे लिखिए, आप 6 इंटू 37,000 माइनस 5.95 इंटू 37 जैसे ऊपर लिख, जैसे मर्जी है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम में लिखिए, कॉलम से बनाइए, जो मर्जी है यार, M1 M2 लिखिए जो, बट कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। सो नोवेयर एनी फॉर्मूला विल बी रिटन कि भाई आपका वेरिएंस सेल क्वांटिटी और सेल प्राइस के कारण क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। सेल प्राइस मतलब प्राइस का डिफरेंस, सेल वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी का। इसमें याद क्या करना है, प्राइस वेरिएंस प्राइस का डिफरेंस, वॉल्यूम वेरिएंस क्वांटिटी का डिफरेंस, डिफरेंस लिख दिए, बजट माइनस एक्चुअल। वैल्यू में बदलने के लिए एक यूनिट का डिफरेंस इनटू यूनिट्स, वैल्यू में बदलने के लिए क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू रेट। रेट निकालने में एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस इज फॉर सम अदर पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ सेल्स मैनेजर। आपको जैसे करना है, आपकी मर्जी है। यह ध्यान देना है कि जब थ्योरी पूछेगा तो कोई जनरल लॉजिक आपके मन में होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। हम लोग इस आंसर की बात नहीं कर रहे जो लिखा, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। सेल प्राइस फेवरेबल या एडवर्स क्यों होगा, फेवरेबल होने का कारण हायर देन एंटीसिपेटेड डिमांड। अगर मान लीजिए मैंने सोचा 200 स्टूडेंट सीएमए पढ़ेंगे, 500 पढ़ने आ गए, फीस बढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज डिमांड इज मोर देन, इन दैट केस प्राइसेस गोज अप, जो कि हम लोग एक टाइप से इन्फ्लेशन बोलते हैं कि चीजों की डिमांड बढ़ती है तो दाम बढ़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। तो या तो आपका दाम बढ़ा है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, या लोअर देन एंटीसिपेटेड डिमांड फॉर कॉम्पिटिटर्स, जो आपके दुश्मन है, लोग उनका प्रोडक्ट नहीं ले, काहे को नहीं ले रहे, हजारों बात हो सकती है, क्वालिटी खराब है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपने अपना क्वालिटी बढ़ाया है इसलिए आप प्राइस बढ़ाकर बेच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सब उल्टा, लोअर देन एंटीसिपेटेड डिमांड, कंपटीटर के पास लोग ज्यादा जा रहे हैं, क्वालिटी आपने खराब कर दी है। वॉल्यूम वेरिएंस क्यों होगा, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल अगर आप कम दाम में बेचोगे। हम लोग यहां पर ऊपर वाले सम में 5.95 में बेचे हैं, नहीं बेचते तो 37,000 से भी कम होता। वैसे हमारा वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स था, इंप्रूव क्वालिटी के कारण ज्यादा बिकेगा। फॉल इन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर या सक्सेसफुल मार्केटिंग करने से, सब उल्टा। सेल प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस आर लिंक्ड टुगेदर, अलग अलग नहीं है, दोनों सेल्स मैनेजर के लिए। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। आपने दाम बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ गया, जैसे मैंने अपना कोर्स बोला 58 के बदले 60, लेकिन उसके कारण नुकसान होने का चांसेस है कि वॉल्यूम गिरेगा, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड आर ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड, मे बी हाई मे बी लो, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी सिलेबस में है, प्राइसिंग चैप्टर में, सीएमए यूएस में पार्ट 2 के अंदर, एसीसीए के अंदर हम पढ़ेंगे बाद में अलग से। यानी कि बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब आप ये लिख रहे हैं कि ये खराब है अच्छा है, आपको एक दूसरा से मिलाना पड़ेगा। नॉट दैट यू कैन से ऑन स्टैंड अलोन बेसिस दिस इज गुड और बैड, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी आर रिलेटेड विथ ईच अदर। हायर प्राइस विल लीड टू लोअर वॉल्यूम, लोअर प्राइस विल लीड टू हायर वॉल्यूम, होता है, जरूरी नहीं है, आपको उस पर ध्यान देना है कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप थ्योरी को प्रॉपरली लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये जनरल पॉइंट्स है, क्वेश्चन में क्या सिनेरियो दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ उसके बेसिस पे। मान लीजिए मेरे को ये जनरल पॉइंट को यहां अप्लाई करना है, हमारा प्राइस एडवर्स है, हमारा वॉल्यूम भी एडवर्स है, हमारे यहां एडवर्स होने का कारण क्या है। सबसे मेन कारण है मार्केट खराब, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं,
लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो केवल हमारा ही प्रोडक्ट नहीं, दूसरे का भी प्रोडक्ट नहीं बिका। यानी कि इट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर कि वो इसको रोक लेता, वो रोक नहीं पाता बेचारा। साथ में दूसरा ये बात है कि हम प्राइस कम करके फिर भी कुछ मैनेज किए, कितना वो तो और डिटेल चाहिएगा, लेकिन प्राइस कम करके ऑब्वियसली क्वांटिटी और कम बिकता, लेकिन हमने बेचा। लेकिन बोला गया कि कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस और ज्यादा कम, हो सकता है उसके कारण आपने मार्केट कॉम्पिटिटर को दे दिया, आपका प्राइस के कारण नुकसान हुआ, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी नहीं बढ़ी ना। तो हो सकता है कि हमने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है, और हमने थोड़ा सा ध्यान दिया कि भाई बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी एबल टू मेंटेन आवर मार्जिन, दैट वी डिड। जो क्वेश्चन में लिखा हम तो उसी को बोल रहे हैं, अलग से थोड़ी ना बना सकते। अलग से बनाने के लिए तो और डिटेल देना पड़ेगा ना। तो जब नीचे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देगा, थ्योरी में मल्टीपल चॉइस देगा, ऊपर का सिनेरियो को डाइजेस्ट करना होगा, देन नीचे आपको समझ में आएगा कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप सीमा केस स्टडी का एग्जाम देंगे अथर्वा के जैसे, तो इन दैट केस भी आपको चीजें केस स्टडी में क्या है, प्रीसीन मटेरियल क्या है, सिनेरियो क्या दिया है, उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है सीमा में कोई वेरिएंस का। ACCA CM में मोर देन 50% क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल, नो कैलकुलेशन। सीमा 100% क्वेश्चन आर थ्योरी, नो कैलकुलेशन। केस स्टडी एग्जाम थ्योरी ही है, बट दैट थ्योरी इज वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी, नॉट दैट आप कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा। यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल इन योर एक्सप्लेनेशन कि ये खराब या अच्छा क्यों हुआ, क्या लॉजिक हो सकता है। हो सकता है आपका लॉजिक मेरे से अलग है, लेकिन आप भी सही है, मैं भी सही हूं। There is no fixed answer for that. That logic should be there to explain. ये ऑपरेशनल केस स्टडी में भी था अथर्वा जी, मैनेजमेंट केस स्टडी में है, लेकिन मैनेजमेंट केस स्टडी में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, ऑपरेशनल में थोड़ा लोअर लेवल पे वो लोग बात करते हैं। और ACCA और CMA के अंदर जो पार्ट सी ऐसे टाइप क्वेश्चन है वहां ऐसे बहुत है, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है वहां पर भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अलावा नीचे लॉजिक से बताना है वेरिएंस एडवर्स फेवरेबल क्यों है। 3-4 लॉजिक अलग अलग लिखा हुआ है, कौन सा लॉजिक सही है वो सेलेक्ट करना है। बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं आप उसको कर नहीं पाएंगे, और कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं होएगा, बिकॉज अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे, गारंटी है। So try to understand the concept so that you will be able to do justice any type of question which comes from the chapter. अभी सेल्स के अंदर और बात करना है, लेकिन अभी मैंने बात किया है सेल्स टोटल वेरिएंस, को कमती बेसी सेल हुआ, बेसी सेल हुआ, प्राइस कमती बेसी हुआ, उसको ब्रेक किया प्राइस के कारण, वॉल्यूम के कारण। सो फॉर द टाइम बिंग एनी डाउट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स वेरिएंस, कुछ पूछना है, डरिए मत, ये लोग नहीं पूछ रहे हैं मैं कैसे, आप अपना सोचिए। फॉर द टाइम बिंग देयर इज एनीथिंग टू आस्क रिलेटिंग टू सेल्स वेरिएंस, एनीबडी? तो आगे बढ़ रहे हैं। सेल्स के अंदर और ब्रेकअप है, पढ़ेंगे। पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चा वाला चीज, जो कि इंस्टीट्यूट मानता है कि आपको आना चाहिए। पहले हम वो बच्चे वाली चीज, बचपन में जो मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, सेल्स प्राइस, वो पढ़ रहे हैं। फिर एडवांस वेरिएंसेस जो है उनको पढ़ेंगे। एडवांस वेरिएंसेस में और सेल्स का ब्रेकअप आएगा, आने दीजिए। पहले अभी बेसिक्स और चीजों का कवर करते हैं, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सबका धीरे धीरे बेसिक्स। जब एक बार सेल्स पकड़ में आ गया, अब सब वैसे ही है सारे, कि मटेरियल में हमें मटेरियल का वेरिएंस निकालना है, कि हमारा मटेरियल का खर्चा क्या लगना था और क्या लगा, कि भाई मैंने इतना सेल करना है, बजट बनाया कि मेरे को 2000 स्टूडेंट को पढ़ाना है, 1000 को पढ़ाना है, तो मेरा खर्चा स्टडी मटेरियल, काप्लान, बीपीपी, दिस दैट, क्या खर्चा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं, अभी ओवरहेड और लेबर की बात नहीं कर रहे। तो हमारा मटेरियल खर्चा क्या होगा, वो बजट के लिए था। बजट मतलब जैसे पिछले एग्जाम्पल में 48,000, योर बजट वॉज देयर टू सेल 48,000, तो आपने मटेरियल वगैरह 48,000 के लिए क्या लगेगा निकाला होगा, रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, कॉस्ट आया होगा।
लेकिन आपने एक्चुअल में 37,000 यूनिट्स ही बेचा है, तो 37,000 के लिए मटेरियल कितना लगा और रेट क्या लगी वो आपका एक्चुअल है। अब आप उसका वेरिएंस निकालिए, पहले टोटैलिटी फिर उसका ब्रेकअप, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी। मटेरियल क्वांटिटी को मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। मटेरियल प्राइस सेल प्राइस के बदले, मटेरियल क्वांटिटी सेल क्वांटिटी के बदले, बट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और टोटल में जैसे सेल्स का टोटल वेरिएंस था वैसे मटेरियल का टोटल वेरिएंस, सेम स्टोरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम कमिंग, 1 सेकेंड। There are 2-3 things here.